Hello friends. So in the last video, uh, I have explained you till why Python is better programming language. Okay, but in the last video, I didn't explain you it is in a detail. I have give you very short information of each line. But in this video, I will explain you in detail why Python is better programming language. Okay, so let's start. So yeah, first point is a simple and easy to learn. We will explain why Python is simple and easy to learn. Okay. In the file, I will read this file in using a Python. Okay. So go to our program. So this very simple program. Okay. First, I have imported library. I will explain it to you later. What is a library and how it should be imported. Okay. So simply, I have called the function read CSV and just name the name of the file by curly.csv. If you can see name of the file by curly.csv. Okay, so I have just passed the file name and I have passed all the information of this file into this variable called data, and then I have print the information using print. Okay, so we will run it. If you see, I have already run the program, so you can see all the information of the file here. You can see admin, gender, department, all the column. See, 25 column. All the column I have printed here. Okay, so what is the next point? So before going to the next point, I will it is very easy to implement this simple program, but if you want to run the same program using a Java program, then it will take more time. It will take more lines of code to run this simple program. That's why Python is very simple and easy to learn. Okay, simple. Now we will go to second, freeware and open source. Okay, anyone can learn a Python program from this website called as a python.org. python.org. Anyone can visit this site and learn the Python program. So this is the official website of the program, official website of the Python organization. Okay, so anyone wants to learn and install the program, he can easily install it. From here also. See, docs, from here he can easily install. So how it should be installed, I will explain it in your next video. Okay, the program is already available in a C language. Okay, we will go to our canvas. Okay, suppose program is already available in your C language. Okay, and your company is properly running only C language or Java language. Okay, so if company is already running a C language, then but you want to implement some program using a Python, you don't know the C language. Okay, so there is already a language called Python. In this Python language, you can easily implement a Python program into this C language. Python program, it is a programming language, so it is a depending fully on the Python
At the same time, suppose if your company has a company running on Java, or if your company running a program completely in a Java, okay, and if you want to implement the program using a Python in the Java related company, then there is already a language called Jython. Okay. So using a Jython, you can easily implement your Python code into the Java. So it is both are one and two. Both are open source programming language. They are fully depending on Python. And third example is a big data. Big data. तो बिग डेटा स्पेशली क्या होता है? तो बिग डेटा होता है, ये समझो अभी जैसे आपका फेसबुक का बहुत सारा डेटा है, फेसबुक के फ़ोटोज़ वगैरह है, फेसबुक के फ़ोटोज़ या फिर फेसबुक के वीडियोज़। तो तुमने एक फ़ोटो अपलोड किया फेसबुक पे, उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो तुमने अगर देखा होगा तो ऑटोमेटिकली फेसबुक सजेस्ट करता है कि ये जो पर्सन है, ये इस नाम का पर्सन है क्या, ABC नाम का पर्सन है, ये इसकी फ़ोटो है क्या। तो उसको कैसे पता चलता है? तो फेसबुक को, तो वो सब डेटा फेसबुक बिग डेटा की वजह से कैप्चर करता है सारे फ़ोटोज़। ओके, और वो बिग डेटा की हेल्प की वजह से उसको पता चल जाता है कि ये फ़ोटो किसकी है। सो बिग डेटा मतलब चंक ऑफ डेटा होता है। तो उसको चलाने के लिए भी पाइथन का एक प्रोग्राम है कॉल्ड एनाकोंडा पाइथन। ओके, तो ये सब ओपन सोर्स है, पाइथन, जाइथन और ये अपना एनाकोंडा सब ओपन सोर्स है। So we will go to our next point, high level programming language. Okay, what is our next point? High level programming language. So why Python is a high level programming language? So for जैसे memory allocation, दूसरा security, ओके, तीसरा है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन, ओके, और थर्ड है गार्बेज कलेक्शन। पहला है मेमोरी एलोकेशन मतलब सिंपल ये सारी जो 4 चीज़ें हैं, ये चीज़ें पाइथन को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेमोरी एलोकेशन, सिक्योरिटी, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन और गार्बेज कलेक्शन, ये चारों चीज़ें पाइथन में ऑटोमेटिकली हो जाती है। इसके लिए हमको कोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो इसकी वजह से पाइथन ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ओके, अभी हम सीखेंगे कि लो लेवल मतलब ये मेमोरी एलोकेशन मतलब अगर समझो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी आप दिन भर में बहुत सारी चीज़ें आपके मेमोरी में स्टोर होती है, बराबर। जैसे कि आप टीवी में कोई सीरियल देखते हो, ओके, वह समझो, और सेकंड जैसे आपको कोई घर वाले इंस्ट्रक्शन देते हैं, ओके। और लेकिन ये सारी चीज़ों में से मैं अगर आपको पूछूं कि कल क्या हुआ, तो आप सिर्फ मुझे वही चीज़ें बता सकते हैं जो आपने आपके लिए, आपके लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एग्ज़ाम, अगर आपको कल पता चला कि आपका एग्ज़ाम है, तो आप मुझे बता पाओगे कि हाँ, मुझे कल पता चला कि मेरा एग्ज़ाम है। तो ऐसा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये ऑटोमेटिकली हम मेमोरी में
स्टोर करते हैं और जो अनइम्पोर्टेंट है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है, तो इसको ही बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन। ये ऐसा पाइथन में भी होता है, ये ऑटोमेटिकली होता है। जो जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है वो पाइथन रखता है, मेमोरी में रखता है, और जो अनइम्पोर्टेंट डेटा होता है वो निकाल देता है, ये ऑटोमेटिकली होता है। सिक्योरिटी पाइथन प्रोग्राम इस खुद में एक सिक्योर प्रोग्राम है। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन, अभी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब तो मैंने आपको शायद लास्ट टाइम में बताया था। जैसे आप कोई शॉप में चले गए, तो शॉप में समझो शूज़ के शॉप में चला गया, तो उसमें शूज़ एक ऑब्जेक्ट है, शॉप एक ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे ही पाइथन में हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं तो उसको डिलीट तो करना पड़ेगा ना। या हम लोगों ने कभी शूज़ लिया, समझो हमारे पास शूज़ है या कुछ पुरानी चीज़ें हैं, तो हम लोग वो पुरानी होने के बाद निकाल देते हैं। वैसे ही पाइथन में जो ऑब्जेक्ट पुराने हो जाते हैं या फिर जिनकी ज़रूरत नहीं होती है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। गार्बेज कलेक्शन भी से हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके घर में कूड़ा कचरा होता है, तो वो आप किसी कूड़ेदान में वो कूड़े कचरा रखते हो, बाद में वो घर के बाहर निकाल देते हो, राइट। ऐसे ही सेम पाइथन में होता है। पाइथन में जो अनवांटेड चीज़ें होती है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। सो ये जो चार चीज़ें हैं ये लो लेवल एक्टिविटी है। तो ये एक्टिविटी के लिए पाइथन को अलग से काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो दैट इज़ वाई पाइथन इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये ऑटोमेटिकली हो जाती है चारों चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट क्या था अपना? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इधर गया अपना पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सो वाई पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ओके, सो जो पाइथन प्रोग्राम है वो आपके कौन से भी iOS रहेगा, विंडोज़ रहेगा या फिर मैक OS रहेगा, तो तीनों चीज़ों में पाइथन के प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रन होते हैं। तो ये क्यों होता है, तो इसका तो ये हम आज सीखेंगे। ओके, सो वी विल गो टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। सो ओपन F5, नेक्स्ट स्लाइड। पाइथन प्रोग्राम। ओके, समझो हमने एक पाइथन प्रोग्राम रन किया है हमारे मशीन को, मतलब मेरा जो लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है, इसको कैसे समझ में आया कि आपने क्या प्रोग्राम रन किया है। ओके, तो उसके पीछे भी रीज़न है। हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि आपका अगर विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक है, कोई भी सिस्टम हो, तो वो तीनों तो आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली कैसे रन होता है। तो जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं तो रन करने के बाद में जो प्रोग्राम है वो एक बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, एक बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है उसके बाद में एक पाइथन इंटरप्रेटर होता है। आप जब पाइथन प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो तो ऑटोमेटिकली पाइथन इंटरप्रेटर भी इंस्टॉल हो जाता है। ओके, तो जो पाइथन इंटरप्रेटर है हर सिस्टम के लिए अलग अलग होता है। तो आपका जो बाइट कोड है वो पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है, जो आपका बाइट कोड है वो विंडोज़ के अंडरस्टैंडेबल कोड में, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ओके, जब वो विंडोज़ के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसके बाद में हम लोग को उसका आउटपुट दिखता है। पहले वो मशीन समझता है, बाद में हम उसको समझते हैं। नेक्स्ट में लिनक्स में भी ऐसा होता है। सेम आपका कोड है जो बाइट कोड में आपका कोड पाइथन कोड बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, बाद में पाइथन इंटरप्रेटर बाइट कोड को लिनक्स के अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट करता है। सेम विद द मैक ओएस मतलब आपके जो एप्पल वाले कंप्यूटर होते हैं उनको उसके अंदर मैक ओएस होता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें भी सेम होता है।
सो पाइथन इंटरप्रेटर की वजह से ही आपका पाइथन का प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिकली मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। पोर्टेबिलिटी पोर्टेबिलिटी मतलब विंडोज़ के प्लेटफॉर्म पे लिखा हुआ है, ओके, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखा हुआ है, ओके। और अगर आप वो कोड चाहते हो कि एप्पल वाले कंप्यूटर में भी चले, तो वो आप इजीली कर सकते हो। आप इसकी वजह से पाइथन पोर्टेबल है, मतलब हम लोग कौन से भी सिस्टम में प्रोग्राम उठा के रन कर सकते हैं। डायनामिकली टाइप, ओके, डायनामिकली टाइप के लिए तो हमको जाना पड़ेगा इसका अंतर। सो लास्ट टाइम अगर आपने लास्ट टाइम का मेरा वीडियो देखा होगा, आपको पता चला होगा कि जावा का प्रोग्राम रन करने के लिए हमें इंटीजर सी, मतलब अगर एक वेरिएबल है सी, हाँ, ये वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें इंटीजर पहले लिखना होता है। अगर ये हम लिखेंगे तो ही ये वेरिएबल का वैल्यू है, ये इस वेरिएबल का वैल्यू है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। अगर सिंपली आप सी लिखोगे 10, इसमें भी 10, हाँ, ऑटोमेटिकली। so when you write this c is equal to 10, then you don't have to write integer like you have write here, okay। so आप पाइथन में इजीली वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो without giving a name like a integer to variable। so this is why Python is a dynamically typed language, okay। so second point, what is our second point? Both procedure oriented and object oriented, okay। so फिर से यहाँ पे जाते हैं। so पाइथन प्रोग्राम है ये तो एक तो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड है, ओके, हाँ, एंड इट इज ए प्रोसीजर ओरिएंटेड कोड भी है। एट द सेम टाइम ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो पाइथन ये अपना ऑलराउंडर है, मतलब ये सारी चीज़ें पाइथन में हम लोग चला सकते हैं, ऑब्जेक्ट, प्रोसीजर लैंग्वेज और ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है। तो अब ये डिटेल ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर और प्रोसीजर ओरिएंटेड क्या होता है, ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, और या इसको मैं अभी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में भी लूँगा कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजर ओरिएंटेड एक्चुअली क्या होता है। लास्ट वीडियो में मैंने शॉर्ट में समझा है ये क्या होता है, ओके। तो हम अभी जाएंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट में। और नेक्स्ट पॉइंट इंटरप्रेटेड, ओके। सो we'll go to again our new drawing, okay। so इंटरप्रेटेड तो जैसे मैंने लास्ट के स्लाइड में बताया था कि आपका जो पाइथन का कोड है वो ऑटोमेटिकली पाइथन का कोड है वो ऑटोमेटिकली बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाए। और इंटरप्रेटर बाइट कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सो अब इंटरप्रेटेड क्यों है, और एक मैं आपको एक दूसरा बताऊंगा एक इसमें, इसको इंटरप्रेटेड क्यों बोलते हैं। सो सी, जावा और पाइथन, ओके। सो सी में क्या होता है कि आपका जो कोड है वो पहले कंपाइल होता है,
सी और जावा दोनों में. Your code will first compile and then later you have to run your program. Okay, दोनों में C and Java दोनों में. But in the Python you have to only run your program. You don't have to compile your program. So when you run your program, then your interpreter directly convert, and then when you run your program, then it will convert your code into the bytecode, and then your interpreter convert it into the machine understandable code. But C और जावा में पहले कंपाइल होगा, बाद में रन होगा, बाद में उसका C और जावा का जो इंटरप्रेटर है वो उसको मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा. सो व्हाट इज योर नेक्स्ट पॉइंट? एक्सटेंसिबल. सो जैसे मैंने एक्सटेंसिबल है हमारा नेक्स्ट पॉइंट. तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था आपको मेरे ये वाले मैंने मेरे ये वाले स्लाइड में कि आपका जो सी लैंग्वेज है, अगर आपके कंपनी में और किसी कंपनी में सी लैंग्वेज होता है और आपको आप उसमें पाइथन प्रोग्राम रन करवाना है तो आप कर सकते हैं. इसको ही बोलते हैं एक्सटेंसिबल. आपके अगर कंपनी में जावा है तो आपको अगर जावा प्रोग्राम रन को पाइथन यूज़ करके जावा प्रोग्राम रन करना है, देन यू हैव टू यूज़ अ जाइथन. So this is we called as a extensible. So we can run any of the program using a Python. So this feature is called as a extensible. Okay. So what is your next point? Embedded. What is your next point? Is embedded. Okay. Embedded मतलब आपके जो embedded मतलब आपके जो चिप्स वगैरह होते हैं सीपीयू में, या फिर आपके पास जो स्मार्ट वॉच होते हैं उसमें जो चिप होता है तो उसमें उसका भी कोडिंग लैंग्वेज होता है. सो पाइथन को आपके मशीन के मशीन का जो लैंग्वेज है, ओके, तो उसको कनेक्ट कैसे करते हैं, तो वो करने के लिए भी हम लोग पाइथन प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं इजीली. सो हम लोग चिप का एक नाम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रास्पबेरी पाई. ओके, सो रास्पबेरी पाई मोस्टली एक बोर्ड होता है, सिंगल बोर्ड होता है, कंप्यूटर में हम लोग यूज़ करते हैं. जैसे रैम होता है, हार्ड डिस्क होता है, वैसे रास्पबेरी पाई भी एक छोटा एक चिप होता है. ओके, वो मोस्ट ये अलग अलग मशीनरी में वो पाया जाता है. जैसे कैमरा में रास्पबेरी पाई का इंफ्रारेड नाइट विजन के लिए रास्पबेरी पाई का चिप यूज़ होता है. ओके, कैमरा में यूज़ होता है रास्पबेरी पाई. सो ये जो रास्पबेरी पाई है, सो अभी जो रास्पबेरी पाई कोड है, तो हम लोग जब भी ये रास्पबेरी पाई आउटपुट देता है तो वो आउटपुट समझने के लिए पाइथन प्रोग्राम यूज़फुल है. मतलब ये रास्पबेरी पाई को कनेक्ट करने के लिए पाइथन प्रोग्राम यूज़फुल है. सिर्फ रास्पबेरी पाई नहीं, बहुत सारे हैं ऐसे, गम स्टिक्स, बीगल, बोंग, ब्लैक. तो ये अलग अलग टाइप के चिप्स होते हैं. तो इनसे कनेक्ट करने के लिए पाइथन प्रोग्राम हम लोग यूज़ कर सकते हैं. What is your next point? Fine. Extensive library. Okay. So जैसे मैंने आपको बताया था इस प्रोग्राम ये लाइब्रेरी, तो पंडास प्रकार की एक लाइब्रेरी है. ओके, सो टोटल ऐसे लैख के ऊपर लाइब्रेरीज है
सो लाइब्रेरीज एक्चुअली क्या होता है, अगर किसी ने एक प्रोग्राम ऑलरेडी पंडास, अगर ये लाइब्रेरीज में क्या होता है, लाइब्रेरी पंडास, अगर ये आप ये पंडास की लाइब्रेरी ओपन करके देखोगे, ये सिंपली एक पाइथन कोड होता है। सो सिंपली एक पाइथन कोड होता है और हम लोग वही पाइथन कोड को कॉल करते हैं हमारे इस कोड में। सो जो फोल्डर, सो पंडास एक फोल्डर में जो कोड लिखा है वो कोड को हम लोग इस कोड में कॉल करते हैं। ओके, कॉल रीड CSV, देखा, PD मतलब PD रीड CSV मतलब पांडास में पहले से ही एक रीड CSV करके एक फंक्शन है और फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं, उसके वजह से ये प्रोग्राम रन कर पाए। सो ऐसे पंडास जैसे ऐसे लाख के ऊपर पाइथन के लाइब्रेरीज है, उसके वजह से पाइथन इज़ अ वेरी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। आप खुद की भी लाइब्रेरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो थैंक यू।